everyone. I welcome you all again on the YouTube channel of TEQIP GATE classes. So again, those who have not subscribed yet, please go through that so that you will access all the videos and you will get the notification of that whenever we will upload it. Okay. So this is all about me. Okay, and we have started the subject machining and the machine tool operations from the mechanical engineering or especially in the manufacturing technology. Okay, so in the last video, that is lecture number 5, we discussed about the geometry of a single point cutting tool using a rubber and the cutters, and we also discussed about the different types of the tool signature, and there are different types of the angle. Okay, so that we discussed. Now, as I said in the last lecture, that in the next video, which is lecture number 6, we will discuss about the different types of the forces. But what I feel is like we have up to until now we have completed the mechanics of machining part. Okay, and in that basically only from my side one concept is remaining, that is shear strain and the shear strain rate. So that we will cover. But before going to that, what we have covered till now, okay, like tool signatures or the formulas that we have derived on the basis of whether it's a relationship of r pi alpha or the velocity relationship. So on the basis of that, whatever the numerical problems, standard numerical problems, which is available from in the previously asked in the GATE problem or engineering services examination or any other examinations, that we are going to discuss in today's lecture. Okay, and then we'll discuss the concept of this one, shear strain and the shear strain rate, and we'll also see the numerical problem on that, two numerical problems. Okay, so let's start with today's session. But before starting with the today's session, in the lecture number in the last lecture basically we discussed this problem. Okay, and as I said that time that I will tell you the answer of this one VS in the next video. So this VS, these are the angles. I mentioned this, that this was asked in AE of UK Uttarakhand PSC, but later on I saw that this problem has been asked in engineering services examination along with the ISRO also in 2009. Okay, so what are the data that is given to you? That is rake angle, that is alpha, that is 15 degree, pi, that is 45 degree shear angle, and V, that is 35 mpm, and we have already calculated this value. This is VC, which is a chip velocity, that we have to find out, so that we get the answer this one. Now we have to find out this VS. So for the VS, the relationship that will be equals to cos pi minus alpha. So that will be equals to, in terms of VS, this is equal to cos of alpha. ठीक है, तो यहाँ से VS निकाल लीजिए. So VS will become V into cos of alpha upon cos pi minus alpha. ठीक है, so simple है, values रख दीजिए. This is 35 into cos of alpha. Alpha is how much? 15 degree. This is 15 degree upon cos phi, that is 45 minus 15 degree. ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बाय द वे दिस थिंग इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, आपने की कैलकुलेटेड की हुई है. So I have also calculated, so I am getting the value, that is 39.04 mpm. ठीक है, so this is the answer. Now let's move to the next problem. That is देखिए, थोड़ा मैं फास्ट मूव कर सकता हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें जो कंसेप्ट डिस्कस करना है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. So I have a time constraint as well along with that. So let's move to the next one. In ASA system, if the tool nomenclature is this one, आपको tool nomenclature दिया है, then the side rake angle will be. देखिए ES में क्वेश्चन पूछा गया था 93 में. So ASA system क्या होता है आपका? फर्स्ट, that is alpha, आपका rake आता है. rake में भी आपका कौन सा आता है? That is alpha B, then alpha S, then gamma E, that is end clearance angle, side clearance angle, and cutting edge angle, side cutting edge angle, and R, that is a nose radius. ठीक है, तो देखिए 2 mm लिखा है एट द एंड, इसका मतलब ये सिर्फ mm जो है ये इस टर्म को डिफाइन कर रहा है, that is 2 mm. ओके, सो ओके 2 mm इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब नोज रेडियस आपकी 2 mm है. ठीक है, नाउ पूछ क्या रहा है, दैट इज साइड रेक एंगल क्या होगा? साइड रेक एंगल कहाँ है भाई? सेकंड डिजिट जो है, दैट इज डिफाइनिंग द side rake angle. So the side rake angle will be 6 degree. Okay, so the option will be B. Next, this is the question also asked in the GATE engineering services examination in 2009. All these are objective only, not in conventional. Conventional जहाँ पे पूछा है वहाँ पे मैंने conventional mention किया है, so no need to worry. ठीक है, the following tool signature is specified for a single point cutting tool in American system, means ASA system. Okay,
Now this is these are the designation, these are the, what does the angle 12 represent? 12 कहाँ पे है देखिए, सेकंड डिजिट जो है वो 12 है, ठीक है। आपके देखिए टोटल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 6 एंगल प्लस 1 नोज रेडियस, टोटल 7 होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि 7 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। नाउ आपको क्या पूछा है, 12 रिप्रेजेंट। तो अगेन 12 किसको रिप्रेजेंट करता है ऐसे सिस्टम में, दैट इज ऑफ अल्फा बी एंड अल्फा एस। तो सेकंड डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अल्फा एस को। सो दिस इज साइड रेक्टेंगल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। A cutting tool having tool signature as 10 these are the tool signatures, so 1 2 3 4 5 6 7, okay, ठीक है। ये आपकी नोज रेडियस है, बाकी टू एंगल है। will have the side rake angle, ठीक है। साइड रेक एंगल क्या होगा अगेन, so this is alpha b and alpha s, second digit again, so that will be 9 degree। देखिए this question was asked in GATE ISRO 2011। देखिए इन तीनों क्वेश्चन की खासियत आपने देखी होगी, अगर आपने मे बी ऑब्वियसली आपने देखी होगी कि लाइक तीनों में साइड रेक एंगल ही पूछा है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो इसमें पूछा दो में साइड रेक एंगल पूछा है और एक में वैल्यू देके पूछा है कि व्हिच एंगल इज डिफाइंड एज, सो दिस इज अगेन एज साइड रेक एंगल ओनली। सो इसका मैंने इसलिए नहीं लिया है कि लाइक ऑल आर बेस्ड ऑन द साइड रेक एंगल, बट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट आर लाइक you should get an idea that how they can ask the problems, okay। So this is up to ISRO। Let's move to the next one। This is asked in GATE 2009 in production and industrial engineering subject। So like if like this machining process जो है ये production और industrial engineering students के लिए भी है। So if you have any friends in the production P&I, so you can share this link to him as well, okay। So the question is asked in the common data question, मतलब common data है तो दो क्वेश्चंस होंगे आपके, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। एंड ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट एट 20 मीटर पर मिनट, ओके, दैट इज द कटिंग स्पीड। सो द वैल्यू ऑफ v इज गिवन टू यू, सो दैट इज 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। यूजिंग अ कटिंग टूल ऑफ रेक एंगल इज 15 डिग्री, मतलब मींस अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज 15 डिग्री, ठीक है। द चिप thickness is 0.4 mm, so the value of tc is given to you, that is 0.4 mm, ठीक है। the uncut chip thickness is 0.2 mm, so the value of t is given to you, so that is 0.2 mm, ठीक है। नाउ द shear plane in degrees is, मतलब देखिए आपको phi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट, ठीक है। तो phi वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूलास अवेलेबल है, तो अभी तक जो फॉर्मूला है phi के लिए दैट इज 10 phi is equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha, ठीक है। where r is basically the chip thickness ratio, ठीक है, and r is the rake angle। तो rake angle जो है वो तो आपको गिवन है, बट R जो है वो आपको गिवन नहीं है। बट R के लिए जो फॉर्मूला हमें पता है दैट इज T by TC इक्वल टू LC by L, ठीक है, इक्वल टू VC by V, ठीक है। तो T and TC values are given to you, so we will use this formula, okay। So first R will be equal to T by TC, so this T, what is this T? T is 0.20, that is uncut chip thickness, and TC is chip thickness, okay। So this is 0.40, so this value will be equals to 0.50, ठीक है। यहाँ से आपको R मिल गया। now you can get the value of phi, so this 10 phi will be equals to R, that is 0.50 into cos of alpha, alpha is how much, this is 15 degree, ठीक है, upon 1 minus R, that is 0.50 into sin 15 degree, ठीक है। Now I am giving you 1 minute to calculate this value, okay। So tell me the answer of this phi। Again I request that ये क्या है कि basically वीडियो है, ठीक है। तो इन केस लाइक अगर मान लीजिए कि मेरा जो कोई आंसर आता है अगर वो गलत हो जाता है, देन आई विल शेयर द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स विद यू और इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स, ओके। तो आप थोड़ा वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो एनीवन गॉट द आंसर? Okay, fine। So now I have also calculated this one,
तो जो व्हाट एक्चुअली मेरी आदत है कि लाइक मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना पसंद नहीं करता हूँ, सो आई हैव calculated these things individually. So when you will calculate this individually, what in the numerator I am getting is that is 0.4830, ठीक है, एंड जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 0.8706. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट टाइम यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 0.5548, ठीक है. नाउ ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द 10 5, ठीक है. तो 5 यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो इनवर्स जब आप करेंगे सो द वैल्यू दैट यू विल गेट इज दैट इज 29.02, ठीक है. देख बट ये जो देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है 26.8, 27.8, देखिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो देखिए if there is no option is available then we will go for the approximate value, ठीक है. approximate value देखिए इसको अगर approximate देखेंगे तो this will be 29 डिग्री, ठीक है. तो 28.8 डिग्री एंड 29.8 डिग्री, ठीक है. सो आई थिंक दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, सी ऑप्शन 28.8. बट देखिए अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड विद दिस डेटा इज गिवन टू यू. ओके, जो आपको ये वाला डेटा पूरा गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दिस डेटा. सो अगर इन केस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इस डेटा की लाइक 5 की अगर आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, देन यू विल यूज दिस वैल्यू बट यू आर गेटिंग दैट इज 29.02, ठीक है. बट मान लीजिए कि क्यों, क्योंकि ये कॉमन डेटा में है. बट मान लीजिए कि अगर लिंक डेटा अगर आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो लिंक डेटा में क्या होता है कि जो यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है वो आंसर हम लोग चूज करते हैं. मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे करने पे आपको 29 मिल रहा है, ठीक है, बट 29 आंसर है नहीं क्वेश्चन में. आपके चारों जो ऑप्शन है एमसीक्यूज में, उसमें चारों ऑप्शन में से 29 कहीं है नहीं. सो दैट आंसर नियरेस्ट आंसर इज दैट वी आर चूजिंग दैट इज 28.8 डिग्री. तो अगर लिंक डेटा क्वेश्चन होता तो हम लोग जो वैल्यू चूज करते हैं 5 की दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी 28.8, 29 नहीं चूज करते, ठीक है. बट अगर कॉमन डेटा है तो हम लोग 29.02 यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ देयर विल बी रिक्वायरमेंट. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. देखिए डेटा सेम है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द चिप वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट, ठीक है. तो चिप वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज क्या अवेलेबल है, दैट इज फर्स्ट रिलेशनशिप जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज v अपॉन cos phi माइनस अल्फा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू vc अपॉन sin phi, ठीक है. नेक्स्ट एक और टर्म होती है दैट इज vs, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कैलकुलेट करना नहीं है, ठीक है. तो vc यहाँ से मिल जाएगा हमें, vc विल बी इक्वल्स टू v into sin phi, ठीक है, अपॉन cos पाई माइनस अल्फा, ठीक है. तो v की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज 20 मीटर पर मिनट. सो दिस इज 20 मीटर पर मिनट एंड sin phi कितना, अभी देखिए अगेन नाउ दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू यू, ओके, फॉर कैलकुलेटिंग दिस vc. तो जो आपका डेटा आया है दैट इज 29.02, ठीक है, वही आप रखेंगे इसमें, दैट इज 29.02, ठीक है, अपॉन cos 29.02 माइनस अल्फा दैट इज हाउ मच 15 डिग्री, ठीक है. तो आप इसको कैलकुलेट करिए, मैं भी अपनी वैल्यू देख लेता हूं. ठीक है. नाउ व्हेन यू okay, I have calculated, so my what I am getting is that is 10.00, okay, so 10 meter per minute, okay. So this will be this option will be B, okay. ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये लिंक डेटा होता, ठीक है, क्योंकि डेटा तो सेम ही है, लिंक डेटा होता और आपका जो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट में आया भी है 9th क्वेश्चन में, तो सेम यू आर यूजिंग दिस वन. तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 29 की जगह 28.8 कंसिडर करते हैं, तो उससे भी मैंने आंसर कैलकुलेट करके रखा है. यहाँ पे आप 28 करते हैं और यहाँ पे आप 28.8 करते हैं, तो दैट टाइम द VC वैल्यू विल बी दैट इज 9.92 मीटर पर मिनट, ठीक है. तो दैट इज अगेन इक्वल टू द अप्रोक्सीमेट दैट विल बी इक्वल्स टू 10. बट अगेन देखिए अप्रोक्सीमेशन जब लेना होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हमें लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा देखिए वी आर बाय द वे वी आर फ्रॉम आवर साइड दिस आंसर इज करेक्ट बट वी आर नॉट श्योर, ओके. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट प्लीज कीप इन माइंड दीस थिंग्स, ओके, लिंक डेटा और कॉमन डेटा, ठीक है. नेक्स्ट इज
the question that has been asked in the engineering services examination in the conventional in the 10 marks especially. Okay, तो देखिए अगर आपका मैकेनिक्स ऑफ द मशीनिंग पढ़ने पे मतलब जो अभी तक 3 से 4 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, अगर इतना ही पढ़ने में 3 लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर में से नहीं ओके 5 लेक्चर हो चुके हैं वैसे, बट 5 में से एक तो आपका इंट्रोडक्शन वाला था, तो 4 लेक्चर हुए हैं। अगर शुरू के 4 लेक्चर में पढ़ने में अगर आपको 10 मार्क्स मिल जा रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब्जेक्ट आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, सो ए बार, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए बार ऑफ 70 mm डायमीटर इज बीइंग कट ऑर्थोगोनली is to reduce 68 mm by a cutting tool। ओके, तो मैं बार को कुछ इस तरह से दिखाता हूं। देखिए ये आपका इनिशियल डायमीटर है, ठीक है, दिस इज वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज कैपिटल डी, सो दिस इज इक्वल टू 70 mm, ठीक है, and this is your final diameter, so this is small d we are assuming, so this is equals to 68 mm, ठीक है। now this is a single point cutting tool and आपने यहाँ पे कुछ डेप्थ ऑफ कट मेजर रखी हुई है। डेप्थ ऑफ कट को अगर यहाँ पे जरूरत है तो आप मेजर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फाइनल और इनिशियल डायमीटर गिवन है, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, स्मॉल डी, सॉरी डी डैश, दैट इज अ डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन केस मीन लेंथ ऑफ द चिप इज, देखिए मीन लेंथ ऑफ द चिप मतलब जो LC गिवन है आपको, ना कि TC गिवन है, मीन लेंथ ऑफ द चिप इज 68.9 mm, तो LC की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 68.9 mm, ठीक है। फाइंड द कटिंग रेशियो, ठीक है, पहले हमें R कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिटरमाइन द shear एंगल आल्सो इफ द रेक एंगल इज 10 डिग्री, मतलब हमें phi भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमें व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। देखिए पहले हमें R कैलकुलेट करना है, तो R के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ T by TC, LC by L, ठीक है, एंड VC by V, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी की टर्म्स तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये वाला सिस्टम, ये वाला जो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको T by T और TC दोनों में से एक भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते हैं। विल गो फॉर दिस वन, ओके। सो व्हेन यू विल यूज दिस R विल बी इक्वल्स टू LC by L, आपको LC तो गिवन है, दैट इज मीन लेंथ ऑफ द चिप, दैट इज 68.9 mm, बट आपको L गिवन नहीं है। L इज बेसिकली व्हाट, द अनकट चिप। नाउ हियर इट विल बी द लेंथ ऑफ द अनकट चिप और अनडिफॉर्म्ड चिप्स, ओके। तो नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट इट, देखिए आपको क्या है कि जो आपको ये वाला पोर्शन रिमूव करना है, ठीक है, आपको इसकी लेंथ चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि देखिए आप इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे, देखिए आपकी जो चिप है, द चिप विच इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर, ठीक है, मान लीजिए जो चिप्स दैट इज कमिंग आउट, उनकी जो लेंथ है, मीन लेंथ का मतलब ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चिप्स। अभी अगेन इसमें आपको मटेरियल नहीं दिया है, या मटेरियल दिया भी होता है, देन इट्स लाइक कि आपको 70 से 68 mm तक रिड्यूस करना है डायमीटर को, एंड आफ्टर रिड्यूसिंग द डायमीटर आप जो चिप्स फ्लो हुई है, मान लीजिए कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, आपने क्या किया है कि आपने उनको मेजर किया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू टुक द एवरेज ऑफ दैट, सो दैट इज बेसिकली द मीन लेंथ ऑफ द चिप, ठीक है। नाउ इनिशियली जो आपने ये डेप्थ ऑफ कट चूज की है, व्हाट एवर द डेप्थ ऑफ कट इज देयर, नाउ मान लेते हैं कि हम लोग ये पूरा अमाउंट ऑफ द मटेरियल एक साथ रिमूव होता है, ठीक है। तो इनिशियली मतलब अनडिफॉर्म्ड की केस में आपकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी, कि मान लेते, देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर आपका, जब इसको आप फ्रंट साइड से देखेंगे, तो फ्रंट साइड से अगर देखेंगे, एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि इसका डायमीटर D है, ठीक है, तो जब मैं मान लीजिए कि इसको रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से रिमूव होगा, तो ये पूरा पोर्शन रिमूव होता जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से रिमूव होके यहाँ तक आएगा। जब मान लीजिए ये रिमूव हुआ, रिमूव होने का मतलब है यहाँ पे ओपन हो गया है, तो ओपन अगर हो गया है तो मान लीजिए ये किस तरह से खुलेगा, ये इस तरह से खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे फाइनल जाके एंड हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी आपकी, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, दैट इज पाई इनटू D, ठीक है। बट
अब ये तो एक एग्जांपल था, ठीक है, बट नाउ यहाँ पे क्या है, आपका ये वाला पूरा सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, जब आप इसको इधर से देखेंगे दिस क्रॉस सेक्शन विल बी विजिबल टू यू. सो at the end how it will looks like, it will looks like what I am thinking is, sorry, this will looks like this. Okay, now ये जो है आपका this is a pi into capital D, ठीक है, and this portion is pi into small d, ठीक है. नाउ आपको क्या करना है कि इसकी एवरेज लेंथ लेनी है, मीन लेंथ लेनी है, ठीक है. तो मीन लेंथ ये वाली रहेगी. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वन, दिस विल बी द अनडिफॉर्म्ड chip length. Okay, so this L will be equals to the average of these two. So L will be equals to pi into d plus pi into small d by 2. So this will be equals to pi into capital D plus small d by 2. So from this basically you can get the value of undeformed chip. Okay, so this L will be equals to pi into capital D is 70 plus small d, that is 68 by 2. So tell me the value of this one. Okay, so what I'm getting is that is 216.7699 mm. Okay, so this is the value that I'm getting. Now what we have to calculate in this problem first, that is R. Okay, now R will be equals to, this is uncut chip thickness ratio, that will be equals to LC by L. So LC is how much, that is 68.9 and L will be equals to 216.7699. so just give me the value of this one. Fine, so the value that I am getting is 0.3178. okay, so 0.3178. so this will be the answer, first answer. Okay, second answer, for the second answer we have to calculate this phi. So what formula we have, that is 10 phi will be equals to R cos of alpha upon 1 minus R sin alpha. ठीक है, now R की वैल्यू है जो रिसेंटली कैलकुलेट की है आपने, that is 0.3178 into cos of alpha. Alpha is how much, 10 degree. Okay, so this is upon 1 minus R, that is 0.3178 into sin 10 degree. ठीक है, so when you will calculate it, again I am using my own approach. So this is 3130, ठीक है, and this will be like 0.9448. so tell me the value of this one. Okay, so what I am getting is 0.3313. ठीक है, so this will be equals to, now this value will be equals to of 10 phi. so from here when you will inverse it, so phi will be equals to how much I am getting is, that is 18.3294 degree. ठीक है, देखिए आंसर आपका कन्वेंशनल में पूछा गया है तो आपको आंसर पता नहीं होगा. सो व्हाट एवर द आंसर दैट वी आर गेटिंग, दैट स्पेशली इफ maximum among us are getting, it means that it is a correct answer. Okay, let's move to the next one. Okay, this is a wonderful problem, that's why it is asked in the GATE 2008. Okay, I forgot to mention which. This is organized by IISc Bangalore. Okay, so in a single point cutting tool, in a single point turning tool, turning किससे करते हैं हम लोग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही करते हैं. so no need to worry. the side rake angle, मतलब साइड रेक एंगल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अल्फा एस से. सो साइड रेक एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल आर इक्वल. देखिए पहले देख लेते हैं आपका टर्म्स क्या क्या है. ऑर्थोगोनल रेक एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अल्फा ओ से. ठीक है, अल्फा ओ या फिर सिंपल अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू वरी. ठीक है, बाय द वे मैंने ओआरएस सिस्टम में आपको अल्फा ओ रिप्रेजेंट किया था. बाय द वे ओके, सो मैंने अल्फा ओ से रिप्रेजेंट किया था, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन. बट आप अगर इसको, क्योंकि सिंगली एक ही रेक एंगल है तो आप इसको अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, नो नीड टू वरी फॉर दैट. ओके, बाय द वे बुक्स में आपको अल्फा ओ ना मिलके आपको अल्फा ही मिलेगा. ठीक है, तो मैं भी इसको अल्फा ही यूज कर रहा हूँ. ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है. आर इक्वल, देखिए पहली कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज अल्फा एस विल बी इक्वल्स टू अल्फा. ठीक है, ये गिवन है.
phi is the principal cutting edge angle. देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज phi is the principal cutting edge angle, और जो मैंने ऑर्थोगोनल सिस्टम में लिया था, मैं आपने क्या था यहाँ पे हमने लिया था लेमडा, ओके, दैट इज अप्रोच एंगल एंड दैट आल्सो द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो चाहे फाई से रिप्रेजेंट करिए चाहे लेमडा से, कोई इशू नहीं है, मैं लेमडा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि लेमडा से मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये फॉर्मूलास आप अपनी सिनॉप्सिस में लिखेंगे या फिर अगर मान लीजिए किसी बुक्स में भी अगर देखेंगे, आप स्टैंडर्ड बुक्स में अगर देखेंगे तो वो आपको लेमडा से ही रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, ठीक है। सो it will not be a confusion for you, that's why I'm using this lambda term. By the way, at the end we have to find out the value of phi, so आप just assume करना है कि आपने lambda की जो value find out की है that is will be equals to phi only, just you are assuming this nomenclature, confuse मत होना, ठीक है। and its range is 0 degree to 90 degree, मतलब जो आपका lambda अगर हम assume कर रहे हैं तो ये जो range है this belongs to 0 to 90 degree, ठीक है। the chip flows in the orthogonal plane, ठीक है, then the value of phi is closest to, or the lambda is closest to, मतलब lambda की value हमें find out करनी है when the chip flow in the orthogonal plane, and there's a one more condition is given to you, that is alpha s will be equals to alpha orthogonal cutting। देखिए ये जो टर्म्स है आपकी, ये वाली टर्म है आपकी ASA सिस्टम की which is अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये जो टर्म आपकी एफिलिएटेड है that is related with the ORS, affiliated with the ORS, ठीक है, ऑर्थोगोनल रेंज सिस्टम। तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था लाइक इन द लास्ट वीडियो, दैट इज ASA इज अ डिफरेंट सिस्टम एंड ORS इज अ डिफरेंट सिस्टम। तो हाउ वी कैन मैच बोथ द वैल्यूज टुगेदर, so for that there are 4 formulas are available, ओके एंड देखिए ये चारों फॉर्मूला, देखिए कुछ चीजें क्या होती हैं कि आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं, ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारी चीजों को मेमोराइज करिए। सिनॉप्सिस बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक यू आर जस्ट टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर। नाउ आपके वो डे बाय डे अगर आप देखते रहें तो वो चीजें क्या होगी कि जब आप चीजें सामने देखेंगे कंटिन्यूअसली, देन इट विल रिड्यूस योर टाइम टू मेमोराइज दैट, ओके। नाउ जो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज आने वाला है दैट इज वन अमंग दीज 4 फॉर्मूलाज। तो जो आज हम 4 फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं, उस अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट एज वेल एज, बिकॉज मान लीजिए कि एक कोई फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, उसके लिए आपको 2 से 3 पेजेस आपने डिराइव कर लिया एंड एट द एंड व्हाट एवर द फॉर्मूला दैट यू आर गेटिंग देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट फॉर्मूला, ओके। तो इसका मतलब 3 से 4 पेजेस आपने बर्बाद कर दी, यू वेस्टेड योर टाइम। तो जो फॉर्मूलाज अवेलेबल है वो मैं बता देता हूँ, कन्वर्जन फॉर्मूला है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और जो इन फॉर्मूलाज को याद करने की ट्रिक है, ठीक है, जो व्हाट ट्रिक आई हैव एडॉप्टेड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, जस्ट आई एम पुटिंग ओवर हियर दैट वन ओनली, ओके। मान लीजिए कि अगर आपके पास इससे बेटर कोई ट्रिक है देन यू कैन शेयर विद मी इन द कमेंट सो दैट अदर पीपल विल आल्सो बी बेनिफिटेड विद दैट, ओके। ओके सो अल्फा एस ASA सिस्टम में मैं यहाँ पे 2 एंगल्स ले रहा हूँ। पहला है कि आपको देखिए आप नाउ वी आर हम फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो जो 2 वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है दैट इज फर्स्ट है अल्फा एस, अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फा एस दैट इज अ साइड रेक एंगल एंड अल्फा बी विच इज अ बैक रेक एंगल, ये आपका होता है ASA सिस्टम में। अगर हम ORS की बात करें तो यहाँ पे आपका होता है अल्फा विच इज ऑर्थोगोनल रेक एंगल, I होता है आपका इंक्लिनेशन एंगल, और I will be equals to 0 if it is a orthogonal cutting and I will not be equal to 0 if it is a oblique cutting, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक एंगल होता है that is lambda which is a approach angle and that is also represented like 90 minus CS if you want to represent in the ASA system, ठीक है। तो अभी जो हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं that define the relationship, not deriving but I'm just writing the formula that define the relationship between the alpha s that is a side rake angle, alpha b which is a back rake angle, alpha that is a orthogonal rake angle and I which is a inclination angle, ठीक है, and lambda, ठीक है। now there are 4 formulas, तो मैं क्या है चारों फॉर्मूला को आपको लिखने के लिए पहले 4 इक्वेशंस बना देता हूं, ठीक है। एंड यहाँ पे दिस इज साइन लैम्बडा, दिस इज cos लैम्बडा, ऐसे मैं सभी में लिख देता हूं, दिस इज साइन लैम्बडा, this is cos lambda, this is sin lambda, here cos, this is sin, this is cos, ठीक है। now
सबसे पहले आपके, जैसा मैंने बोला कि 4 वैल्यूज हैं आपके पास। देखिए लेमड़ा तो हो ही गया है, तो नाउ अभी लेमड़ा की बात नहीं करेंगे, हम इन चारों की बात करेंगे। पहला है आपका अल्फा। देखिए ये ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा, दिस इज अल्फा, देन नेक्स्ट इज अल्फा एस which is a side rake angle, then next alpha b which is a back rake angle, then it is an inclination angle, that is I। ठीक है, ठीक है। नाउ देखिए मेरे यहाँ थोड़ी लाइट चली गई है, सो थोड़ा सा मैं आप, लेकिन दिख रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। दिस आई, दिस इज अल्फा। नाउ फर्स्ट हम लोग अल्फा को डिफाइन कर लेते हैं। नाउ अल्फा को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, देखिए ओआरएस को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एएसए सिस्टम, मतलब अल्फा एस और अल्फा बी की टर्म में। सिमिलरली फॉर द आई, ठीक है, आई को भी अगर हम डिफाइन करेंगे दैट विल वी विल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एस एंड अल्फा बी। ठीक है, जब हम अल्फा एस को डिफाइन करेंगे दैट टाइम वी विल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड आई, एंड सिमिलरली वी विल गो फॉर द अल्फा बी एज वेल। ओके, नाउ अगर हम अल्फा के लिए डिफाइन कर रहे हैं, देन देखिए आप इसको एक क्लॉक की तरह लिखिएगा कि ये आपकी 12 बजे है, ये आपकी 3 है, ये 6 है और ये 9 है। ठीक है, now when you are moving this from alpha to this side, this is alpha, first is alpha s is coming, so this is 10, alpha will be equals to, first आपका कौन सा आ रहा है, that is alpha s, next to that is alpha b, so this is alpha 10 alpha s and this is 10 alpha b। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे प्लस या माइनस सभी में आएंगे, बट प्लस आएगा या माइनस दैट विल डिफाइन कि आपका अगर क्लॉकवाइज है then you will use the plus sign, if it is anti-clockwise then you will use the negative sign। ठीक है, तो ये आपका क्या है, clockwise डायरेक्शन में है, so you will use the plus sign। ठीक है, now इसके साथ हम i की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। now for the i, इधर तो क्या है आपका अल्फा है, तो i को हमें फाइंड आउट किस टर्म में करना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एस एंड अल्फा बी। so for that we have to move in this direction। ठीक है, तो this direction which अल्फा बी क्या आपका फर्स्ट है, देन इट इज अल्फा एस, सो राइट हियर दिस इज 10 आई, हियर इट इज फर्स्ट इज अल्फा बी एंड देन इट इज 10 अल्फा एस। ठीक है, नाउ फॉर दिस यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस विल बी इन माइनस। ओके, सेकंड इज आप अल्फा एस को डिफाइन कर लीजिए। यहां से अल्फा एस को जब आप डिफाइन करेंगे तो अल्फा एस के लिए, अल्फा इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको, जब आप इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं देन इट इज अल्फा बी, तो बेटर यू शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। सो फर्स्ट इज अल्फा, देन इट इज आई, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 अल्फा एस, सो फर्स्ट दैट इज 10 अल्फा एंड देन इट इज 10 आई। आप एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस विल बी माइनस। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज रिमेनिंग, व्हिच इज अल्फा बी। तो अल्फा बी के लिए आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, first is I, then it is alpha, so this is 10 alpha b will be equals to 10 I and 10 alpha। now you are moving in a clockwise direction, so this will be plus। देखिए ये जो चारों फॉर्मूलाज हैं, ये चारों फॉर्मूलाज it shows the conversion from ASA to ORS as well as from ORS to ASA। ठीक है, तो देखिए ये अगेन आपको, देखिए इसके लिए कोई कंसेप्ट है नहीं कि हाउ दिस, एंड कंसेप्ट जो है अगर आपका पूरा, इट्स लाइक यू हैव टू इमेजिन इन अ 3D, ओके, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो जस्ट आप अपनी सिनॉप्सिस में ये फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, एंड व्हाट द ट्रिक दैट आई एम यूजिंग, अगर आपको ये इजी लगता है ये, देन यू कैन फॉलो दिस वन। ओके, बट रटिए मत इनको, क्योंकि रटने से क्या होता है, क्योंकि रटने में क्या है, जब आप मान लीजिए आप सिनॉप्सिस बनाएंगे और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और एनी अदर एग्जामिनेशंस, then obviously you will as a student you will make the sheets, okay, जो आप दीवारों पे चिपकाते हैं, तो एक रूम की पूरी वॉल होती है तो वो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से ही भर जाती है। ठीक है, और अगर आप में से उसमें से एक या दो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो शीट्स हम यूज करते हैं, अगर आप वो शीट्स अगर देखेंगे तो उतना तो आपको सिर्फ मेमोराइज करना होता है, मतलब रटना पड़ता है। तो अगर आप रट भी रहे हैं तो यू शुड फाइंड आउट अ ट्रिक इन दैट, ओके, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पे मेरी तरफ से ये ट्रिक है आप लोगों के लिए टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, नो नीड टू ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया था, फर्स्ट दैट इज अल्फा एस इज इक्वल्स टू अल्फा, ये आपको कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो अल्फा एस, देखिए आई एम यूजिंग दिस
फॉर्मूला, बिकॉज इसके अलावा जो आपके तीन फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये वाला इसमें आपका अल्फा बी की टर्म आ रही है, यहाँ पे अल्फा बी की टर्म आ रही है और यहाँ पे अल्फा बी की टर्म आ रही है, बट जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पे भी अल्फा बी के बारे में कुछ कहा नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, द थर्ड वन, ओके, दिस वन. So when you will use this formula, लिखिए that is 10 alpha s, तो alpha s को मैं alpha से represent कर सकता हूँ, so next this will be equals to 10 alpha will be equals to 10 alpha and sin lambda as it is रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि lambda की वैल्यू हमें क्या है फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट इज माइनस 10 आई इज हाउ मच, देखिए आपका चिप इज फ्लो इन द ऑर्थोगोनल प्लेन, तो ऑर्थोगोनल अगर प्लेन में आपका चिप फ्लो हो रहा है देन आई वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, सो दिस इनटू कॉस लेमडा, ठीक है, तो यहाँ से दिस इज 10 अल्फा विल बी इक्वल्स टू 10 अल्फा इनटू साइन लेमडा, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो अगर ये 0 है तो दिस वैल्यू कंप्लीट विल बिकम 0, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी बचेगी, ठीक है. नाउ अगेन यहां से आपका दो इस साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका 10 अल्फा है, राइट हैंड साइड में भी आपका 10 अल्फा है, तो दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है, सो what will remaining sin lambda will be equals to 1 and this lambda will be equals to pi by 2 or 90 degree, ठीक है, lambda की वैल्यू sin lambda की वैल्यू 1 कब होगी when this lambda value will be equals to 90 degree, so the option will be D, ठीक है. देखिए इसमें क्या था कि इस क्वेश्चन में आपको एक रेंज दी हुई थी, ठीक है, 0 से लेके लेमडा की जो वैल्यू है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, ठीक है, तो अब आपको क्या है कि इसमें पूछा है कि आपको दो कंडीशंस दी हैं, फर्स्ट के अल्फा एस जो है साइड रेक एंगल जो है दैट इज इक्वल टू द ऑर्थोगोनल रेक एंगल एंड द सेकंड कंडीशन दैट इज जो चिप दैट इज फ्लोइंग इन अ ऑर्थोगोनल प्लेन, इट मींस दैट देयर इज नो इंक्लिनेशन एंगल, इट मींस दैट I will be equals to 0, ठीक है, दो कंडीशन आपको दी है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है, सो यू आर यूजिंग द फॉर्मूला एंड जस्ट गेट द वैल्यू. देखिए अगर मान लीजिए कि अब ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है देन इट विल टेक यू 2 मार्क्स, इट विल टेक फ्रॉम यू 2 मार्क्स, ओके, यू कैन नॉट टेक दैट 2 मार्क्स. तो बेटर है कि अगर आपको एक फॉर्मूला मेमोराइज करने के साथ मेमोराइज करने से वो भी अगर आपका ट्रिक्स आपके पास है तो अगर आपको उससे 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं देन यू शुड गो फॉर इट, ओके. नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ shear strain एंड द shear strain rate, ठीक है, देखिए इसके लिए मैं एक मॉडल यूज कर रहा हूं, वी आल्सो कॉल दिस मॉडल एज अ पाइस-पेनन्स मॉडल, पाइस-पेनन्स मॉडल, ठीक है, इसका क्या मॉडल है ये पाइस-पेनन, मैं सिंपली समझा देता हूं आपको. लाइक व्हेन देयर इज अ स्टैक ऑफ कार्ड्स, basically what he said that this whenever we are going for a cutting using the single point cutting tool, then the material which is coming out from the workpiece, what material which is like the chips which is coming out from the workpiece, that is nothing but that is deformed in the shear plane, and whatever the chips that is coming out that will be treated as a stack of cards, okay. मतलब क्या है, मतलब समझा देता हूं कि मान लीजिए कि आपने जो कार्ड्स होते हैं जो पत्ते हम लोग खेलते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स वाले, तो देखिए 52 कार्ड्स को क्या करिए कि आप लोग जैसे फ्रेश कार्ड्स अगर हैं, अगर आपने कभी फ्रेश कार्ड्स को यूज किया है, ठीक है, देन जैसे ही आपने निकाले हैं बॉक्स में से, ठीक है, और मान लीजिए कि आपने अपने हथेली पे रखे हैं, देन व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट अप्लाई अ लिटिल shear force over the card which is on the top. जैसे ही आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ shear force अप्लाई करेंगे, द ऑल द कार्ड्स विल फ्लो विद द मतलब विद इन अ सेकंड ऑल द कार्ड्स विल फ्लो अलोंग विद दैट, ओके. तो इसका मतलब क्या है कि एक चिप को आप खींचेंगे तो दूसरी चिप जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगी, दैट इज अगेन देयर विल बी अ shear डिफॉर्मेशन. इसका रीजन क्या है, मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से, तो जो सबसे पहले टॉप वाली है, ठीक है, आप इसको ऊपर खींच रहे हैं, इसको shear force दे रहे हैं, दिस विल which is bottom of that will also try to come along with that, okay. तो अगर ये जा रही है तो नीचे वाली भी जाएगी, इस तरह से एक दूसरे के साथ डिफॉर्म होती जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे कहना क्या चाहता हूं मैं, थैंक गॉड लाइट,
आ गई है। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये जो आपकी चिप्स हैं, ठीक है, एक्चुअली व्हाट ही मेंशन इज लाइक आप इसको इस तरह से ट्रीट करिए, ठीक है, दिस इज द कार्ड, ओके, ठीक है, दिस इज लाइक एक के ऊपर एक, मतलब नाउ यू विल सी दिस वन, ये जो है आपकी ये चिप है, ठीक है, ये एक चिप है, ये इसके ऊपर एक मतलब बेसिकली टूल के ऊपर खड़ी होगी, और ये दूसरी वाली है, मतलब ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली। इस कंसेप्ट को आप मतलब इस ट्रिक ऑफ कार्ड्स स्पेशली इस मॉडल में लिखा हुआ है, इस वजह से दैट टर्मिनोलॉजी आई एम यूजिंग। द सेम कंसेप्ट यू कैन एज्यूम फॉर द लाइब्रेरी एज वेल। लाइब्रेरी में जो आपकी बुक्स रखी रहती हैं किसी एक रेक में, तो वो क्या होती है कि स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। नाउ आप क्या करिए कि उनको जब मान लीजिए कि कोई उनको जब उठाता है तो उसका हैंड क्या रहता है, किस तरह से रहता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि जब आप हैंड ऐसे ऐसे नहीं रहता है, ऐसे रहता है, बट मैं आपको ब्रेक हो जाएगा तो इस वजह से ऐसे बता रहा हूँ। इस तरह से जब हैंड रहेगा तो बेसिकली एक बुक यहाँ पे, मतलब मान लीजिए कि आप जब उनको पिक कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो एक बुक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से रहेगी बुक्स, ठीक है, तो दैट इज that concept also you can use over here. So this will be a tool, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, और ये जो बुक्स हैं ये आपकी चिप्स होंगी, ठीक है, तो दैट आल्सो कंसेप्ट यू कैन यूज। नाउ दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने थे। फर्स्ट दैट वाज पाइस पेनेंस मॉडल, जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया। दूसरा जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, उससे अच्छा जानते होंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ये एक बॉडी है विच इज स्टेशनरी सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, बॉडी का वेट जो है काफी है, सो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस लेंथ इज नथिंग बट इट्स एल, ओके, एंड जब आप लाइक ठीक है, और दिस लेंथ इज एल, एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग a shear force over this cross section, ठीक है, so this is a shear force, when you are applying a shear force it will try to deform, okay, if the friction force is that much enough, ठीक है, which can resist this shear force which is you are applying, okay, then it will deform, ठीक है, when it will deform this will be the new shape of this body, okay, तो ये जो changes हैं मैं ये कह रहा हूँ कि this changes is nothing but this is deformation, okay, so this deformation is delta L and this change in angle is phi. So now when you will see this tan phi is equals to how much, this is perpendicular and this is base, so this is delta L dl by L, and this is, if phi is very small then this phi will be equals to dl by L. So this phi is nothing but it is a shear strain, ठीक है। नाउ फाई को हम लोग यहाँ पे शेयर एंगल से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस विद फाई, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद गामा एस, ठीक है, सो गामा एस इज नथिंग बट शेयर स्ट्रेन, ओके, सो शेयर स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल, मतलब डेल्टा एल जो आपका डिफॉर्मेशन है परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दैट परपेंडिकुलर जो आपकी लेंथ है, मतलब जो आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, that is only the shear strain, okay, so now with respect to the longitudinal, so this is the shear strain, now that concept I am using, अब इस concept के लिए मैं ये वाला जो फिगर है ये वाला फिगर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, now इस फिगर में देखिए मैं ये वाली फिगर्स यूज कर रहा हूँ, तीन फिगर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि मैं इससे एक और तरीका है जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कंसेप्ट, यहां से क्या है, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि मैं इसकी लेंथ को डिफाइन करना चाह रहा हूं तो मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, तो नाउ यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वन, ओके, और आप इसको समटाइम्स वी डिफाइन दैट बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल, so we also define that it's a mean thickness of the shear zone only, primary shear zone, ठीक है, तो this is ये आपकी इसकी लेंथ मान लीजिए, ठीक है, now अगर
मान लीजिए कि आपका ये shear force है which is we are applying with shear force which is in this direction, ठीक है। बाय द वे हमने अभी ये shear forces के बारे में डिस्कस नहीं किया है, that we will discuss in the next lecture, but no need to worry because deformation आपका हो रहा है, इसका मतलब shear force उसी डायरेक्शन में है, इतना तो आप समझते ही हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द शियर फोर्स, ओके, विच इज एफ इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में होगा। नाउ अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये आपका प्राइमरी आपकी लोकेशन है एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस शियर फोर्स इन दिस डायरेक्शन, देन आपकी जो बॉडी है दैट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, और सेम मूवमेंट आप प्लीज इसमें देखिए, ये जो मूवमेंट है आपका, ये मूवमेंट आपका ये वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था कि आपका जो पोर्शन यहाँ पे था, नाउ दिस पोर्शन इज मूव टू हियर बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन, ओके। इसका मतलब ये जो डिफॉर्मेशन है ये आपका कहाँ पे है, ये वाला है, दिस वन। पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नाउ आपका यहाँ पे आपकी बॉडी इनिशियली ये लेंथ थी, तो आपका ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये इनिशियल डिफॉर्मेशन है, तो ये तो आपका है ही। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे एट एंड पे, तो ये वाला जो पोर्शन था दिस इज शिफ्टेड टू हियर, ओके। इट मींस ये इनिशियली जब यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ है, ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है। तो इट मींस दैट दिस इज अ कंप्लीट डिफॉर्मेशन। दिस पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज अ कंप्लीट डिफॉर्मेशन व्हेन यू आर अप्लाइंग द शियर फोर्स, ओके। सो नाउ मैं ये वाला जो ट्राइंगल है उसको ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ये आपकी शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर जोन है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला जो पोर्शन जो हमने स्टैक ऑफ कार्ड जो कंसेप्ट किया था, दिस इज योर ब्रेक फेस, ओके। नाउ ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते। ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो नाउ this this is the shear deformation zone with respect to the horizontal, it makes the angle phi, shear angle है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, phi होगा, ठीक है। now if we are using this perpendicular with respect to this horizontal, then this angle will be equals to 90 minus phi, और वर्टिकल के साथ आपका ये जो रेक फेस एंगल है, दिस इज अल्फा। सो दिस कंप्लीट एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस फाई प्लस अल्फा, और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू विल मेजर दिस एंगल विल बी 90 माइनस फाई माइनस अल्फा, ठीक है। नाउ आपका जो व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस शियर फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो ये जो ए से लेके आपका सी तक है या फिर सी से लेके ए तक जो है, दिस इज योर डिफॉर्मेशन, ओके। एंड आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज बी डी, ओके। सो द shear strain will be equals to deformation, that is CA upon the BD, okay। now CA को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दिस इज CD, this one, and DA. So this will be equals to CD plus DA by BD. Okay. Now first, this is gamma S will be equals to CD by BD plus DA by BD. Okay. Now this CD, which is this one, by BD, this one. तो आपका अगर ये एंगल है तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज, इफ दिस इज द एंगल, देन दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो दिस इज 10 phi will be equals to perpendicular, that is BD by DA. so this will be equals to, आप यहाँ से DA की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो DA will be equals to, देखिए it is BD upon 10 phi, ठीक है। so this will be equals to DA will be equals to from this BD into cot phi, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट इज इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट इज इन दिस ट्राइंगल, ये जो आपका था ट्राइंगल, दैट इज ADB, ओके। अब ट्राइंगल हम बात करते हैं विच इज BD,
BC, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये आपका एंगल है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन DB which is this one and CD which is this one. तो again tan phi minus alpha will be equals to perpendicular. Perpendicular क्या है आपका which is CD and base that is BD. तो CD की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए, तो CD will be equals to ओके बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए थी दिस इज CD बाई BD की, तो CD बाई BD की वैल्यू तो यहाँ से आ गई एंड DA अपॉन BD की वैल्यू चाहिए थी, तो DA अपॉन BD तो यहाँ से इसको इधर ले आइए, सो दिस विल बी DA अपॉन BD विल बी इक्वल्स टू cot phi, तो इसको सेकंड नंबर कर दीजिए। ओके नाउ यहाँ से इसको थर्ड नंबर कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है, DA CD बाई BD की वैल्यू क्या है tan phi माइनस अल्फा एंड DA बाई BD की वैल्यू क्या है cot phi, ठीक है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम गामा S विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट दिस इज cot phi प्लस tan phi माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया। नाउ दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला, आप इसको सिनॉप्सिस में लिख सकते हैं। दिस विल डिफाइन मतलब शेयर स्ट्रेन जो है आपका दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टू एंगल्स, ओनली एंगल्स, फर्स्ट इज द शेयर एंगल एंड अनदर इज द रेक एंगल, ठीक है। थोड़ा अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बिकॉज इन सम ऑफ द बुक दिस फॉर्मूला इज रिटन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज tan phi माइनस अल्फा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ओपन करिए, सो दिस विल बिकम लाइक cot phi sorry cos phi अपॉन sin phi, ठीक है, प्लस sin phi माइनस अल्फा अपॉन cos phi माइनस अल्फा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, सो व्हेन यू विल टेक द एलसीएम दिस विल बिकम sin phi into cos phi minus alpha, ठीक है। so this will multiply in this side and this will multiply in this side. now मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका this will be cos phi into cos phi minus alpha, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस sin phi into this term, so cos A cos B plus sin A sin B, ठीक है। तो this will be like cos A minus B, so cos A I am assuming that this cos A will be this phi, just cos A, this is phi minus B that is phi minus alpha, so this will become this one. और अगर आप इसको भी मानेंगे तो cos की टर्म में cos minus alpha that will become cos alpha only, okay. so overall जो न्यूमरेटर में that will become cos alpha, so that will be equals to gamma s, ठीक है। तो आप इस टर्म में भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। Now next term is basically the shear strain rate, ठीक है। अब rate अगर मैं बात करूं so this is nothing but the change of the shear strain with respect to the time, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप चेंज करते हैं shear strain rate को and with respect to the time, ठीक है, so this will what it will become, this will become like आपका initially क्या था shear strain rate, this is CD by BD, so CD yeah CA, this is CA which is this one, this deformation, complete deformation, so this is CA by BD, this is a change in shear strain with respect to time, ठीक है। so this will be DCA by DT into upon this is like DBD, ठीक है। तो ये जो है this is defining nothing but this is like change in length, change in deformation है, but मैं इसको इस तरह से define कर रहा हूँ change in length with respect to the time. what it will define, it will define the velocity, okay, which is a shear velocity VS, okay, this will be the VS and this is BD, ये जो था this is BD, so this is मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे this is very minute, so we can define the mean thickness of a primary shear zone, okay, so this is mean shear thickness किससे define करते हैं हम लोग TS से, ठीक है। so this will be TS, ठीक है। so this will be the formula for the shear strain rate and this is and the previous one, this formula is for the shear strain, okay. so I think this concept will be clear to you guys. So there are two problems, we are also taking that one. So this problem is asked in the GATE 2012, okay. Now the detail pertaining to an orthogonal metal cutting process are given below. The chip thickness ratio, which is the value of R is given to you, that is 0.40, okay. Undeformed thickness means T, okay. T is given to you, which is 0.60 mm, ठीक है। अल्फा इज द रेक एंगल दैट इज 10 डिग्री, सो दिस इज 10
cutting speed which is V, that is 2.5 meter per second. Okay, the mean thickness of primary shear zone, तो हम लोग इसको TS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये चेंज इन D ऑफ BD है, मतलब चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दैट इज BD, बट ओवरऑल आप इसको टाउ एस से ही याद रखिए, तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। ओके, सो दिस विल बी लाइक 25 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, द shear strain rate in per second during the process। देखिए मैं यहाँ पे यूनिट बताना भूल गया आपको। देखिए आपका ये जो है shear strain, आपका ये जो है this is completely based on the angle, and again this angle is in like sine and cot and tan, और यहाँ पे आपका sine और cos में है, तो there is no unit for that, बट यहाँ पे क्या है आपका दिस इज इन मीटर पर सेकंड और मीटर पर मिनट, और दिस विल बी इन मीटर, और mm पर सेकंड भी कंसीडर कर सकते हैं। So this will be cancel out and overall unit of this shear strain rate will be per second। okay, और second inverse भी कह सकते हैं आप। ठीक है, second inverse। ठीक है, so like that's why shear strain rate in per second और inverse we have to find out। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए shear strain rate फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि अभी हमने देखा, we have to know the value of Vs by Ts। okay, now Ts value is given to you, we don't know the value of Vs, but we know the relationship of between the velocities। so velocities में हमें क्या given है, which is the cutting velocity is given to you, तो cutting velocity in terms of Vs that will be equals to V upon cos phi minus alpha, that will be equals to Vs upon cos of alpha। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Vs कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देखिए Vs के लिए हमें चाहिए क्या क्या, V चाहिए जो हमें गिवन है, अल्फा चाहिए रेक एंगल दैट इज हमें गिवन है, फाई चाहिए लेकिन हमें वो गिवन नहीं है। तो देखिए Vs निकालने से पहले हमें फाई कैलकुलेट करना है, और फाई के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज tan phi इक्वल्स टू r cos of alpha अपॉन 1 minus r sin alpha। ठीक है, तो यहाँ से r आपको गिवन है, अल्फा आपको गिवन है, तो यहाँ से पहले फाई कैलकुलेट करिए। so tan phi will be equals to r, that is 0.40 into cos alpha, that is 10 degree upon 1 minus 0.40 into sin 10 degree। ठीक है, तो when you will calculate it, please calculate करिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 13 okay, please tell me the value। okay, so I have also calculated this phi from here, so this phi value what I am getting is, yeah, phi value that I am getting is, that is 22.94 degree। ठीक है, this is shear angle। now put the shear angle value over here, so from there you will get the value of Vs। so Vs now will be equals to V into cos of alpha upon cos phi minus alpha। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 मीटर पर सेकंड, cos alpha, अल्फा कितना है आपका 10 डिग्री, अपॉन cos phi that is 22.94 minus 10 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको, कितना आता है यहाँ से। देखिए जब कैलकुलेट करेंगे आप, सो व्हाट वैल्यू आई एम गेटिंग इज, दैट इज 2.526 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Vs, बट हमें Vs नहीं कैलकुलेट करना है, हमें गामा s डॉट को कैलकुलेट करना है, मतलब shear strain rate कैलकुलेट करना है। सो फॉर दैट Ts, देखिए Ts हमें गिवन है, ठीक है, और Vs हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज shear strain rate, so this will be equals to 2.526 upon this is 25 micron in 10⁻⁻6। देखिए ये भी मीटर में है, मीटर पर सेकंड में है, और ये भी आपका मीटर में है, so this will be cancel out from here। just calculate the value। okay, so value that I am getting is, that is 1.0, मान लीजिए that is in 0.10104 कैलकुलेट आ रही है बेसिकली वैल्यू, दैट इज लाइक 0.10104 into 10⁻6, बट ओवरऑल आंसर जो है आपको 10⁻5 में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करिए, 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस आंसर विल बिकम 1.0104 into 10⁻5। ठीक है, सो नाउ आंसर देख लीजिए, so the option will be C। ठीक है, so this will be the correct answer।
Now this question I am giving you in for the homework guys. Okay, तो क्योंकि अभी तक जितना कंसेप्ट था वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है, तो और मैकेनिक्स पे है अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए इस वीडियो में, दैट वाज वेरी इजी। ये वीडियो सॉरी ये जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट हमें यूज करना है। तो दिस इज आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क। इन द नेक्स्ट वीडियो, in the beginning of that next video, we'll discuss this problem. Okay, so thank you so much guys for joining this lecture, and see you soon.